تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور تمام یہاں پر جتنے بھی جماعت علماء ہند کی طرف سے کارکن ہیں، انتظامیہ کی لائن سے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ میں اپنی لائف کا فرسٹ ٹائم یہ مجلس اٹینڈ کر رہا ہوں، یہ جلسہ، یہ نعتیہ مشاعرہ، یہ میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، سنا بھی نہیں تھا۔ بس دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں تو بس وہی وقت لگاتے رہیں، چلتے رہیں۔ بہت بہت زیادہ خوشی ہے آج یہاں پر آ کر کے، میں اپنی خوشی کا آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اتنا آئی ایم سو ہیپی، میں بہت خوش ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور حضرت اعلیٰ حضرت مولانا احسان صاحب کا تو کیا کہنا، ان کے کلامات نے تو اللہ کی ذات سے ایسے باقاعدہ جو ہے وہ تعلق پیدا کر دیا۔ کچھ دیر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بس اللہ سامنے ہے، تو اتنا اچھا لگا۔ اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کی حیات میں ان کا سایہ بدیر ہمارے سر پر سلامت رکھے، اور اللہ ان سارے عالم میں اسی طرح سے جو ہے اپنے دین کا کام لے۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، سب سے بنیادی چیز ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے اندر جو ہے وہ نیت ہے، نیت۔ اسی لیے بخاری شریف جو لکھی گئی نا، یہ ایسی کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر دنیا کو کوئی عالم نہیں بن سکتا، پوری دنیا کا عالم نہیں بن سکتا، یہ وہ کتاب ہے۔ تو حضرت نے جو کتاب لکھی، اس کی پہلی حدیث جو لکھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ نیت کا خطرہ جھولی نہیں پڑتا، تو آپ لوگ اپنی نیت درست کر لیں۔ آپ اگر مجھے دیکھنے آئے ہیں تو کچھ بھی ملے گا نہیں، کون آیا ہے یہ نہ دیکھیں، کیوں آیا ہے یہ دیکھیں، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر نیت ہماری ہے کہ فلم سٹار کو دیکھنا ہے، بھائی عارف خان وہ فلم میں اس طرح کام کیا، اس طرح کام کیا، اور بھائی ان کو دیکھنا ہے، ملنا ہے، سیلفی اتارنا ہے، تو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر اللہ کی محبت میں آئے ہو، اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہو، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس محبت کو تو اپنی محبت سے بدل دے۔ تو بیان تقریر تو ماشاءاللہ علماء اکرام کا کام ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے احسان حسین صاحب علماء اکرام ہیں، باقی تمام تصدق ندوی صاحب علماء اکرام ہیں، سارے علماء اکرام بیٹھے ہوئے، بیان تقریر تو ان کا کام ہے۔ ہم تو اللہ کے راستے میں چل چل کے تھوڑا بولنا سیکھ گئے نا، وہ بس وہ پوپٹ کی طرح رٹ لیا تو اس کو کہہ دیتے۔ تو اللہ قبول فرمائے، بس دعا کریں آپ لوگ۔ تو آج کی جو مجلس ہے ہماری، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی سی اپنی کارگزاری بتاؤں، اور پھر حضور کی زندگی کے اندر کتنی کامیابی اللہ نے رکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس عنوان پر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، میں بھی تھک گیا ہوں۔ خیر، اللہ جو کہنا ہے اللہ قبول فرما لے، کہنے سننے سے اللہ عمل کی توفیق دے۔ جیسے ہمارے مولانا تصدق ندوی صاحب نے کہا کہ میں ایک لفظ، ایک الفاظ میرے کان میں پڑے کہ قبر میں گاڑی جائے گی یا گاڑی جائے گی۔ اصل میں ہوا یوں تھا، میں پورا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں دعوت تبلیغ کے کام سے بڑا بدزد ہو گیا تھا، کیونکہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے یوسف خان صاحب، وہ دعوت کی محنت میں لگے، چیلا لگایا، ان کا چہرہ مورا لباس بدل گیا۔ پھر انہوں نے نیت کی کہ بھائی میں بینک کی نوکری نہیں کروں گا، کیونکہ بینک کا کام کیا ہے، سودی کاروبار ہے، ہاں سودی کاروبار ہے، اور سود کا لینے والا، دینے والا، اور اس کے کام میں ہاتھ بٹانے والا تینوں مجرم ہیں۔ بہت سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ان کے بارے میں۔ تو جب اس کے بعد سمجھ میں آئی تو اس نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے وہ کام چھوڑ دوں گا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ عجیب بیوقوف آدمی ہے، بیوی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کام چھوڑ دے گا تو کھائے گا کیا؟ تو ناراضگی ہو گئی تھی، اور کام سے جو ہے لوگ جاتے ہیں جماعت میں بالکل ملا مولوی بن کر آ جاتے ہیں، سب ان کا حلیہ بدل جاتا ہے۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو سنت طریقہ ہے، یہ چہرہ مورا لباس، یہ داڑھی، یہ جو ہے ملا مولویوں کے لیے ہے، یہ ایسا ذہن بنا ہوا تھا۔ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے،
सुन्नत है ये नहीं पता था। तो बड़े पसंद हो गए थे, मिलने की कोशिश करते तबलीग वाले, तो उनसे हम भागते, मुलाकात नहीं करते। तो हमारे इलाके में एक जमात है, गालिबन दिल्ली की जमात थी, उसके अंदर बुजुर्ग थे, पुराने साथी, सफ़ेद दाढ़ी, लिबास सफ़ेद। हमारे भाई ने शायद ज़रूर बताया होगा कि हमारे भाई साहब जो है वो छोटे भाई फिल्मों में काम करते, नाचने गाने का काम करते हैं, तो आप कुछ करें। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा नहीं वो ये तो प्रॉब्लम है कि मिलता नहीं है। तो अच्छा बोले कब जाते हो सुबह अपने काम पर? तो बोले शूटिंग पर सुबह 8 बजे जाते हैं। तो मेरी गाड़ी के पास आकर ठहर गए और मेरा इंतज़ार करने लगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक फ़कीर जैसा आदमी खड़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में लिबास जो होते हैं वो पहले कुछ हो जाते हैं, सफ़ेद दाढ़ी है। मैंने सोचा कि साहिल होगा, अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ दे दूँ। तो उन्होंने कहा ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। कहने लगे ये बताओ एक सवाल करना है। तो मैंने कहा पूछिए। कहा ये बताओ मरना है कि नहीं मरना है? अरे दत्ते, मैंने बहुत गुस्सा है मुझे, मैं ये कौन भाई है सुबह से ये कोई मरबूल मोहम्मद कौन है सुबह से? क्योंकि हमारी जो जिंदगी थी वहाँ मौत का तस्करा नहीं था, वहाँ तो सिर्फ जो है जिंदगी है। हाँ, हर आदमी जो है सोच रहा है कि मुझे मरना ही नहीं है। जितने फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब सोचते हैं कि हमें मरना ही नहीं है। वहाँ मौत का तस्करा नहीं, वहाँ जिंदगी जिंदगी, रोशनी रोशनी, ऐश ऐश, इशरत जो है ना वो क्या कहते हैं, बेहाई, नंगापन, शराब शबाब, इसी में गर्क है सब, दौलत, पैसा पैसा है पैसा। तो मौत को भूल बैठे। जब आदमी मौत को भूल जाता है ना तो साबित हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बंदा रोजाना 25 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फी मा बअदल मौत, तो मरने के बाद जो है वो फौरन जन्नत में जाएगा और उसको जो अल्लाह पाक शहीदों का मुकाम देगा। तो इतनी बड़ी हदीस है, इतनी बड़ी बात है। तो पूछा मरना है कि नहीं मरना? तो बहुत गुस्सा आया। तो मैंने फौरन कहा हाँ पहले आपको मरना, बाद में मुझे मरना। तो खुदा ही बात हो गई ना। हम समझते हैं कि जो बूढ़ा हो गया वो पहले मरेगा, जवान बाद में मरेगा। हमने देखा कोरोना में कि जो है दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा, देखा कि नहीं देखा? हाँ अरे बोलो ना। तो आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उनकी तो कल अपनी बारी है। तो मैंने यूँ कह दिया पहले आपको मरना है फिर बाद में मुझे मरना। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मैं मरूँ, पहले मुझे मरना है बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताओ खबर के अंदर गाड़ी जाएगी कि गाड़ी जाएगी? भाई दूसरा सवाल किया, भाई दूसरा सवाल। बहुत गुस्सा आया, दिमाग फिर गया था एकदम। सुबह सुबह ये कौन अजीब अजीब सवाल कर रहा है? तो मैंने गुस्से में कहा आपका दिमाग खराब हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी की जब ज़ाया क्यों करते हो? दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये बात जो है ना वो दिल पे एकदम चुभी। वो कहते हैं ना दिल से निकले आह जो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह वालों की बात थी, दिल पे लगी, वहाँ से जिंदगी, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। वो मेरा जिंदगी का टर्न था। मैं सोचता हुआ ड्राइव करता हुआ शूटिंग पर गया कि ये दाढ़ी गाड़ी क्या कह के चला गया। हाँ तो हमारे बड़े कहते हैं ना कि एक की सुन्नत ऐसी है, ये दाढ़ी की सुन्नत के कब्र में जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। दाढ़ी की सुन्नत वाकई में हमारे साथ में जाएगी। जिसको दाढ़ी होगी ना वो सुन्नत, हज़रत ने भी देखो दाढ़ी के बारे में इतना अच्छा शेर पढ़ा, दिल खुश हो गया है ना। अगर सच्ची मोहब्बत करते हो अल्लाह के नबी से तो फिर ये दाढ़ी में आना नहीं क्यों? क्योंकि ये जो ना जाहिर असल है, पहले जाहिर बनाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगे, अल्लाह मेरे जाहिर से बेहतर मेरे बातिन को बनाओ, मेरे जाहिर को नेक साले बना। तो लोग कहते हैं ये अंदर सही होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, आंखों में पर्दा होना, सब झूठ बातें हैं, ये खाली बातें हैं और कुछ भी नहीं। असल तो अपने जाहिर को बदलना होगा। और जाहिर के अंदर इतनी ताकत अल्लाह ने इतना
لگا دیتے ہیں یوپی سائڈ میں. تو وہاں پہ کسی ایک ساتھی نے عجیب کارگزاری سنائی. کہنے لگے کہ اس علاقے میں جو ہے وہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹرین ایکسیڈنٹ میں تو پتہ ہے آپ کو ہزاروں لوگوں کی جانیں چلے جاتی ہیں, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جانیں چلے گی. اب وہ حکومت والے کارکن آئے, کارندے آئے, وہ جو ہے اب دیکھنے لگے بھائی کون مسلمان ہے, کون جو ہے غیر ایمان والا ہے, کون ایمان والا ہے. اب ایمان والے جن کا چہرہ والا لباس سنت پر تھا, سنت کے مطابق تھا, تو ان کو تو اٹھا کر کے سائڈ میں کر دیا کہ بھائی یہ لوگ مسلمان کے ان کو دفن کرو, ان کو دفن کرو. اب جن کا چہرہ والا لباس سنت کے مطابق نہیں تھا, ان کو کیسے پہچانے؟ تو بھائی اٹھایا اور جو ہے ان کو سائڈ میں غیر ایمان والوں کے ساتھ میں جلاؤ, بھائی کو لاش کو جلاؤ. تو ایک ساتھی کو بڑی فکر پیدا ہو گئی, کہنے لگا یا اللہ اس میں کتنے سارے ایمان والے ہوں گے جو چہرے سے نہیں پہچانے جا رہے, یا اللہ میں کیا کروں. تو جا کر کے ان کو کہا بھائی دیکھو ایسے مت جلاؤ, یہ اس میں بہت سارے مسلمان, بہت سارے ایمان والے. تو بولے ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ ابھی جس کا معلوم پڑا اس کو تو ہم نے دے دیا آپ کو دفن کرنے کے لیے, اب یہ ان کا کیسے معلوم پڑے گا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایک چیز ہے جس سے معلوم پڑے گا. بولے کیا چیز ہے؟ بولے ایک چھپی ہوئی سنت ہے, ایک چھپی ہوئی سنت ہے جس سے پتہ چلے گا کہ یہ ایمان والے ہیں کہ نہیں. تو سرکمسیشن, ختنہ سنت جو بچپن میں کرائی جاتی ہے مسلمانوں, تو لاشوں کی شرمگاہ کو کھول کر کے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ بہت ساری لاشیں مسلمانوں کی ملی, بہت ساری لاشیں مسلمانوں کی. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد میں اس کو پہچاننے کے لیے کہ مسلمان ہے یا نہیں, اس کی شرمگاہ کو کھول کر دیکھا جا رہا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھپی ہوئی سنت کی وجہ سے, ایک چھپی ہوئی سنت کی بدولت اللہ نے دنیا کی آنکھ سے بچایا. جب زندگی مستقل سنت پر ہوگی, کیا وہ خدا جہنم کی آنکھ سے نہیں بچائے گا؟ ایک چھپی ہوئی سنت کی بدولت اللہ نے دنیا کی آنکھ سے بچایا. جب زندگی مستقل سنت پر ہوگی تو اللہ خدا جہنم کی آنکھ سے نہیں بچائے. سوچنے کی بات ہے. آج ہمارے وہاں پہ ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے لیے جو ہے راتوں کو جب نکلتے ہیں, اکثر ویکینڈ میں, فرائیڈے کے دن, وہ پولیس والے کھڑے ہوئے رہتے ہیں. وہ ایک ان کے پاس انسٹرومنٹ ہوتا ہے, وہ گاڑی رکاتے ہیں, کہیں پیچھے کرتے ہیں, ان کے پاس وہ لگاتے دیکھتے ہیں شراب پی کے چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا ہے. لیکن میں جب بھی جاتا ہوں, میری فیملی ہوتی ہے, ہم جب بھی جاتے ہیں وہ ایسا دیکھتا ہے, سلوٹ مارتا کرتے جاؤ. کیوں؟ بڑی بڑی گاڑیوں کو رکاتا ہے, BMW مرسیڈیز کو رکاتا ہے, اور جو اس کے پاس انسٹرومنٹ لگاتا ہے, لیکن مجھے دیکھتا ہے تو جاؤ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق اس کی زندگی, یہ شراب نہیں پیے گا. وہ پہچانتا نہیں ہے, وہ کرناٹک کا پولیس والا مجھے نہیں پہچانتا یہ کون ہے, لیکن صرف میرے چہرے کو پہچانتا ہے کہ اس کے چہرے پہ اس کے نبی کا طریقہ ہے, اس کے نبی کی سنت ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ کیس غلط کام نہیں کرے گا. تو میرے بھی بچے پوچھتے ہیں پاپا آپ کو دیکھتا ہے تو ایسا کیوں پہچانتا ہے کہ آپ کو؟ بولا نہیں بھائی میرے کو نہیں پہچانتا, یہ میرے نبی کے طریقے کی طاقت ہے, یہ میرے نبی کی سنت جو میرے چہرے پہ اس کی طاقت ہے, جس کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جا. بولا بیٹا اس طرح انشاءاللہ جنت میں بھی جو ہے اس طرح سے داخل کر دیے جائیں گے جو اس سنت کو اپنائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو, مجھ سے محبت کر کا دعویٰ کرتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے میرے نبی کا راستہ, میرے حبیب والا راستہ. میرے حبیب کے طریقے سے آ جاؤ. آج ہم نے اپنی پوری زندگی جھوٹے دعووں میں, ہاں اللہ نے دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا, اللہ نے دعوت کے لیے پیدا کیا. ہم نے جھوٹے محبت کے دعوے کیے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے ہم نے پکڑے کب ہے؟ آج مسلمان نے نبی کا دامن کہاں پکڑا ہے؟ ارے اگر نبی کا دامن, جو پاک دامن کوئی پکڑ لے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ ولی بنے بغیر دنیا سے نہیں اٹھ سکتا. وہ ولی بنے بغیر دنیا سے نہیں اٹھ سکتا جو نبی کا دامن پکڑ لے. آج نبی کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے, آج بے انتہا ضرورت ہے کہ ہر مسلمان, ہر ایمان والا نبی کا دامن پکڑ لے, باقی سارے دامن چھوڑ دے. ایک ہی ہے ہمارے لیے رہبر, ایک ہی ہمارے لیے وہ شخصیت جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. آج ہم نے دنیا کے طریقوں کو, دنیا کے فیشن کو, دنیا کے اسٹائل کو, دنیا کے طور طریقوں کو اپنا لیا. ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا, نبی کے اسٹائل کو چھوڑ دیا. ہم نے دنیا کو اپنا آئیڈل بنایا. آج بچے, نوجوان بچے بچیاں ہیرو کو, ہیروئن کو, اللہ کی کیا مستی ہے پتہ نہیں. آج ٹاپ کے اسٹار شروعات سے فلم
इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ जितने भी टॉप स्टार है वो सारे के सारे मुसलमान। शायद इसको नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता, समझदार के सारे काफी। शुरुआत से देखिए आप, ये अल्लाह की पता नहीं क्या मस्ती है, अल्लाह कौन सा इम्तिहान हमसे ले रहा है। तो हमारे बच्चे उनके फैशन को उनको देख करके जो है अपनी जिंदगी को वैसे ही लेकर वैसे तौर तरीके वैसे स्टाइल में डाल लेते हैं। अरे हमने उनको अपना इमाम बना लिया, अपना मुक्तदा बना लिया, हम उनके मुक्तदी बन गए। ठीक है, अब ये भी तो देखो कि उनका मुक्तदा कौन है, उनका इमाम कौन है। उनका भी तो कोई मुक्तदा होगा, उनका भी तो कोई इमाम होगा। जब आप तहकीक करोगे, मालूम करोगे तो पता चलेगा कि उनका मुक्तदा, उनका इमाम बॉलीवुड वालों का इमाम हॉलीवुड वाले, उनका इमाम यहूद और नसारा है जो इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के नबी के दुश्मन बाकी है, जिन पर अल्लाह ने लानत गैर मग़ज़ूब अल्लाह ने लानत भेज दी उनके ऊपर। आज उनको अपना आइडल बना लिया हमने जाने अनजाने में, उनके पीछे चल रहे। अब यहूद नसारा का जो है वो इमाम कौन है? उनका भी तो जो कोई मुक्तदा होगा, उनका भी तो कोई इमाम होगा। जब आप तहकीक करोगे तो पता चलेगा कि उनका इमाम जो है वो कुत्ता है। कुत्ता आगे आगे चलता है, अंग्रेज पीछे पीछे चलता है। देखेंगे कुत्ता आगे आगे चलता है, अंग्रेज पीछे पीछे चलता है। अंग्रेज समझता है कि मैं उसका मालिक हूँ, कुत्ता समझता है ये मेरा नौकर है, मेरे पीछे पीछे आ गया। कुत्ते को पेशाब पे खाना करना होता है तो ये ले जाता है, उसका पेशाब पे खाना ये साफ करता है। जो कुत्ता जिनका इमाम है, हकीर जानवर, उसको हमने अपना इमाम बना लिया। उनके तौर तरीके, जो अपने तौर तरीकों से, अपने स्टाइल, अपने फैशन से मुतमईन नहीं है। कभी तो बेल बटन पे आ जाते, कभी तो बैगी और बलून पे आ जाते, कभी चड्डी पे आ जाते, कभी बनियान पे आ जाते, कभी कुछ एक पर जो है वो रहते ही। और ये अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं हमने तरक्की की है दुनिया के अंदर और हम बहुत तरीके याफ्ता लोग हैं, हम बहुत जो है कामयाब लोग हैं। इनकी तरक्की और इनकी कामयाबी कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी तरक्की और कामयाबी शुरू हुई, इन्होंने पहले अपनी औरतों को जो है ना मैक्सी बनाई, मैक्सी। फिर और तरक्की की, मिडी पे आ गए। फिर और तरक्की की, मिनी पे आ गए। फिर और तरक्की की, बिकिनी पे आ गए। फिर और तरक्की की, माइक्रो पे आ गए। और फिर आप आगे चल के और तरक्की करेंगे, इंसानियत को नंगा कर देंगे। और ये इंसानियत को नंगा करने के नाम को कहते हैं तरक्की। और अगर इसको तरक्की कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि रास्तों पे वो कुत्ता और कुत्तियाँ जो है वो जिना करते, जानवर जिना करते, वो उनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम हमारे नबी के तरीके को छोड़ बैठे। अरे हमारे नबी का तरीका तो ऐसा तरीका है कि जिसको देख करके लोग जो है अपनी जिंदगियां बदलते हैं। आज फॉरेन कंट्रीज के नाम हमारा वक्त लगा, अफ्रीका में लगा, वेस्ट इंडीज में लगा, क्यूबा में लगा। हमको देख करके वो कहते हैं सुहाबा 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 सुहाबा। हम गुनहगार लोगों को देख के वो सुहाबा, सिर्फ हमारे होलिये को, हमारे जाहिर को। एक जगह मैं जा रहा था, ऐसी पब्लिक मेरे पीछे आती है, मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाल दी। लोग आते हैं, दीवाने होते हैं। एक गुड़िया खड़ी थी, कहने लगी अल्लाह मेरे बेटे को भी तेरे जैसा बना दे। अरे मैंने कहा माजी ऐसा मत बोल, ये बोल कि अल्लाह मेरे बेटे को सहाबा जैसा बना दे। मैं तो गुनहगार हूं, तू तो मेरा जाहिर नहीं करी, मेरे बातिन को तो अल्लाह जानता है। तो हमें दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें सहाबा जैसा बना, हमारी औलाद, हमारी नस्लों को सहाबा जैसा बना, सहाबा जैसा ईमान दे। जब नया नया काम में जुड़ा था, साथी ने अजीब कारगुजारी सुना। इंग्लैंड के अंदर एक जमात गई। अब जब बाहर मुल्कों में जमात जाती है तो बड़े कहते हैं कि भाई वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना, क्योंकि जब पैदल जमात चलती तो अल्लाह को बड़ी माया आती है, अल्लाह को बड़ा प्यार आता है और बड़े बड़े अज़ाब को भेजने का फैसला कर चुका होता है। अल्लाह उस अज़ाब को मौकूफ कर देता है जमात की चलत फिरत देख करके, जमात की मेहनत को देख करके। तो जमात पैदल चल रही है, वहां पे गिरजाघर था, एक चर्च, ईसाइयों का चर्च था। उस चर्च के ऊपर एक पादरी, फादर जिसको कहते हैं, ईसाइयों को फादर, पादरी, उनका इमाम, वो एक 10 साल के अपने पोते के साथ में
खड़ा हुआ देख रहा है उस जवान को, जवान जा रही है, 7 8 10 साथी है, जा रहे हैं पैदल। तो उस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने एक सवाल किया अपने फादर से, फादर हु आर दे? क्या पूछ रहे हैं? फादर ये कौन है? हु आर दे? ये कौन है? फादर ने बोला दे आर मुस्लिम, ये मुसलमान है। तो उस बच्चे ने देखा अपने फादर को, जमात को, और कहने लगा फादर दे आर लुकिंग लाइक अ जीसस, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ जीसस। फादर वो लोग जीसस के जैसे दिखते हैं, आप तो जीसस के जैसे नहीं दिखते हो। क्योंकि फादर क्लीन शेव था, फादर लोग तो क्लीन शेव होते थे। दे आर लुकिंग लाइक अ जीसस। जीसस की तस्वीर देखी ना हमने, हम सब ने देखी। ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर उन्होंने बनाई, तो लंबी जुल्फें हैं, दाढ़ी है। तो वो बच्चे ने देख करके कहा दे आर लुकिंग लाइक अ जीसस, यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ जीसस, आप जीसस कैसे नहीं दिखते हो। ये बात उसके दिल में जाके लगी और बच्चे को लेकर नीचे आया, जमात से मुलाकात की और वहीं पर उसने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया और उसके जरिए से हजारों लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। ये है ताकत नबी के तरीके की। हमें समझना है दोस्तों, हमने सिर्फ दावे दावे दावे, हाँ नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम को अपने अंदर उतारना, अपने अंदर लाना है। वो एक ट्रेन के अंदर 2 बाप बेटे सफर कर रहे थे, तो बेटे को प्यास लगी। अब वो प्यास लगी, तो अब्बू ने कहा बेटे अगले स्टेशन पर रुकना, उतर करके पानी भर लेना। स्टेशन आया, बच्चा नीचे गया, पानी लेने गया तो लाइन लगी हुई थी, बच्चा लाइन में खड़ा हो गया। अब जब उसका नंबर आया तो ट्रेन चल पड़ी। अब बच्चा ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है और बाप का अंदर दिल मचल रहा है मेरा बच्चा छूट गया। अब उसने इत्तेफाक से बच्चे का नाम था इस्लाम, अब ये अंदर से आवाज दे रहा है इस्लाम। तो जो दरवाजे पे लोग खड़े हुए थे ना, जिंदाबाद, इस्लाम, वो अपने बेटे को आवाज दे रहा है इस्लाम, वो बोले जिंदाबाद, इस्लाम बोले जिंदाबाद। अरे बोले पहले उसको अंदर तो आने दो, अरे इस्लाम को पहले अंदर तो आने दो भाई। इस्लाम तो अंदर आया ही नहीं है, खाली बस बातें। हमारे मुंबई में बोलते बोल बचन अमीला बचन। हाँ, आदमी अपनी मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है, हर आदमी मस्ती में, रंगरलियों में है, ऐशो इशरत में है, पूरी मस्ती चढ़ी हुई है। हम लोग जब चलते हैं ना अल्लाह के रास्ते में तो पता चलता है लोगों के अंदर कितनी मस्ती है। जब मेरी पहली फिल्म जब रिलीज हुई थी, तो जिस इलाके मोहल्ले में मैं पैदा हुआ पला, बॉम्बे में मदनपुरा, बदुरंगारी स्ट्रीट, तो वहाँ पर मुझे चीफ गेस्ट बुलाया। फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट हो गई, मुझे वहाँ पे जो है चीफ गेस्ट बुलाया। मैं वहाँ मेरी जैसी गाड़ी अंदर एंटर हुई तो पूरे चारों तरफ से बिल्डिंगों से फूल बरसाए जा रहे हैं, लड़कियाँ औरतें सब देख रही है और अनाउंसमेंट हो रहा है आरिफ खान साहब इस मोहल्ले में पैदा हुए, आज फिल्मी हीरो बन गए और ये हो गया और वो हो गया। इस तरह से मेरा इस्तेकबाल किया गया। चीफ गेस्ट बुलाया, नाइट टूर्नामेंट, नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो मैं वहाँ स्टेज बना हुआ था, मैं स्टेज पे बैठा हूँ इसी तरह जैसे ये स्टेज है, और मेरा घर छोटा सा मेरा घर था, वो मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा इस मोहल्ले में, आज अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है। एक रात में स्टार बन गए। इतनी ज़बरदस्त हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ फिल्मों में से वही फिल्म थी। तो हो गया किस्सा खत्म। उसके बाद में दावत कबूली में जुड़ गए। 4 महीने लगा के मुंबई का इस्तेमा था, बैंड्रा टोला कॉम्प्लेक्स का। वो इस्तेमा के अंदर मेहनत चली, नुक्कड़ों की जोड़ की इसके। तो कुछ साथी मुझे उस इलाके के वहाँ लेकर गए, स्टेज बनाया। स्टेज के ऊपर मैं जैसे जा करके बैठा तो मेरे ऊपर अंडा आया, अंडा बना मेरे मुंह पे आके अंडा गिरा। हाँ मैं बोला भाई शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, साहबा ने डंडे खाए मंडे खाए। तो सोचने की बात है, जब मैं शैतान का काम कर रहा हूँ और जब मैं बिल्कुल हराम काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझ पे फूल बरसा रहे, और जब मैं नबी की दावत लेकर जा रहा हूँ तो मुझे अंडे खाए, अंडे मारने झगड़े होने लगे। फौरन मुझे वहाँ से लेके गाड़ी में निकल गए, बोले यहाँ तो भी हो जाएगा। तो ये है, इतनी मस्ती है मुसलमानों में। मार नहीं खाएंगे क्या?
हाँ, फिर बोलते कि वो मार रहे हैं, वो हुकूमत ऐसी, वो हुकूमत ऐसी। अरे अपनी तरह अपने अंदर अपने अपने अमाल तो देखें। हालात आते फिर कहते हैं अल्लाह मेरा हाथ दे, अल्लाह कहता बंदे तेरी चाल दे। बंदा चाल बदलने में तैयार नहीं, अल्लाह हाल बदलने तैयार नहीं। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजरती चली जा रही जानवरों की तरह। अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के एतबार से नहीं की, अल्लाह ने जिंदगी संवारने के एतबार से की। और संवारने के लिए एक ही रास्ता है, वो नबी का तरीका, वो नबी का तरीका। तो मस्ती भरी जिंदगी हो कहते हैं हमारे मुंबई के अंदर, आग लगी बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। क्या आग लगी बस्ती में हम तो रहे मस्ती में। तो आज इन मुसलमान नौजवानों को कौन समझाएगा भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी स्कूल, कौन सी जो है वो इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैं बताओ ना, कौन सा ऐसा ये सिस्टम है जहाँ पर मुसलमान को मुसलमान बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए? हर जगह डॉक्टर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, और पायलट बनाया जा रहा है, साइंटिस्ट बनाया जा रहा है, IAS ऑफिसर, IPS सब कुछ बनाया जा रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बनाया जा रहा है, बिजनेस टाइकून बन रहे हैं। लेकिन इंसान किसको बनाया जा रहा है? इंसान बनाने का एक ही रास्ता है, हाँ, वो इस्लाम में दीन है। वो इस्लाम हमारे अंदर आने का दुनिया ही बस गई है, दिल के अंदर दुनिया है, दुनिया है, दुनिया दुनिया दुनिया। सुबह उठे दुनिया को सोच, रात को सोते दुनिया को सोचते हैं। ये दुनिया की गंदगी ये जब तक नहीं निकालेंगे ना, वो क्या हो गया? एक गांव के अंदर एक कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। क्या गिर गया? कुत्ता गिर गया। अब वो भाषा में शुरू हो गई, कुत्ता फूल गया। अब लोगों ने कहा फलां इलाके में कोई मुफ्ती साहब है, वहाँ जाएंगे, उनको बताएंगे। जाके मुफ्ती साहब से कहा मसला ऐसा है, कुत्ता गिर गया कुएं में, कुछ बताओ क्या करें? मुफ्ती साहब ने बहुत आसान है, जाओ जाके 40 जोल पानी निकाल दो, 40 जोल पानी निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। अब ये लोग बड़े जोश खरोश में आगे 100 डोल निकालेंगे, 100 डोल निकाल गए, पानी पाक नहीं, बदबू गई नहीं। परेशान है, बोले यार मुफ्ती साहब ने कुछ गलत बताया, सही नहीं बताया, चलो जाते जाके बात करते हैं। सब लोग आते और आगे मुफ्ती साहब पे नाराज हो जाते हैं, मुफ्ती साहब ने क्या हमको फतवा बताया और ऐसा किया, 40 दिया हमने, 100 डोल निकाल दिया, कुछ भी हुआ नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने बोल के जाने लगे। तो मुफ्ती साहब को ख्याल आता है, तो मुफ्ती साहब को ए भाई इधर इधर इधर, बोले कुत्ता निकाला कि नहीं निकाला? बोले नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला। तो ये दुनिया में कुत्ता हमारे दिलों के अंदर जो बैठा है, जब तक नहीं निकालेंगे ना, अल्लाह की जान अंदर नहीं आएगा, दीन इस्लाम अंदर नहीं आएगा। कसम से इसको निकालने की मेहनत है। ये दुनिया की मोहब्बत को, ये दुनिया के गंदे कुत्ते को निकालने की जरूरत है। इसके लिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में। अब मेरे तजुर्बे में, मैं 25 साल से इस मेहनत में लगा हूँ, तो मेरे तजुर्बे और मेरे हिसाब से तो भाई ये एकदम आसान है, जिसमें डॉक्टर भी चल रहे हैं, इंजीनियर भी चल रहे हैं, बड़े बड़े मालदार, बिजनेसमैन, ताजिर, मुलाजिम, हर कोई अमीर, गरीब, बादशाह, फकीर, सब जाएंगे ना भाई अल्लाह के पास। बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने तख्ता लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ कटोरा लेकर नहीं जाएगा। तो सबकी जरूरत है, तो सब चल रहे। अभी एक्टर बचाओ, अल्लाह ने मुझे चुन लिया ताकि कल ये कोई ना कह सके कि तुम्हें कोई, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं। अल्लाह हर फील्ड से, हर शोबे से लोगों को भेज रहा है। इससे नियतें करो कि हम अपनी जिंदगी में नबी का तरीका लाएंगे भाई इंशाल्लाह। इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकल के नबी वाली जिंदगी सीखेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं है। 3 दिन 40 दिन 4 महीना, ठीक है ना भाई? हर कोई जा सकता है, हर जगह से जा सकता है, कभी भी जा सकता है। कोई एडमिशन ले लीजिए, 24 घंटे एडमिशन खुला हुआ रहता है, ठीक है? ठीक है मौलाना, अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ की दरख्वास्त है सबसे इंशाअल्लाह। दुआ से खबर हाफिज इस्माइल साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं शुक्र अदा करें।